ગ્રીન કલર ઈ શેનો છે? એ કલર છે પ્રેમ, કે હું આ આખી દુનિયા સાથે પ્રેમ કરીશ. જે પ્રેમ કરે એની દુનિયા હરિયાળી બને. જ્યાં પ્રેમ છે ત્યાં હરિયાળી છે. સિમ્પલ. જે દેશમાં તમને હરિયાળી દેખાય ને ત્યાં સમજવું કે એની ભૂમિમાં જ પ્રેમ ભરેલો છે. કારણ કે ત્યાં નિસ્પૃહ ભાવે આપવાની જ ભાવના. પ્રેમ ઓળખવો કેવી રીતે, ઓળખવો કઈ રીતે? કે ત્યાં માત્ર આપવાની ભાવના છે, લેવાની ક્યાંય જ્યાં ભાવના હોતી નથી, એનું નામ છે પ્રેમ. આ સૃષ્ટિની અંદર આ ગ્રીન કલર જે છે એ આનંદની આપલેનો કલર છે. આનંદ એટલે સ્વતંત્રતાનું ટ્રાન્ઝેક્શનનો કલર છે. અને આ સ્વતંત્રતાનું ટ્રાન્ઝેક્શન સક્સેસફુલ ત્યારે જ બને જ્યારે માત્ર આપવાની જ ભાવના હોય. મને શું મળશે એની કોઈ જ્યારે ભાવના હોતી નથી, એનું નામ છે સેવા. આ સેવાને જો પવિત્ર બનાવવી હોય તો આ ભાવના સાથે આ કાર્ય કરવાનું છે. કર્મયોગ. આ ગ્રીન કલર છે કર્મયોગ. કે હું આ ધરતી ઉપર એક માનવ બનીને આવ્યો છું ને મારો રોલ એવો છે કે બધા મને કરશે. મારા ઉપર કરોડો જીવો નભે છે ને હું ઈ કરોડો ઉપર નભું છું, એવું જેને ભાન હોય. મારા ઉપર કરોડો નભે છે ને હું ઈ કરોડો ઉપર નભું છું, આવું અમારું આપલે છે. હવે માત્ર મારે નિર્ણય લેવાનો છે કે આ જે હું નભું છું જેના ઉપર એને હું શું આપી શકું? તો કે એને હું માત્ર આશીર્વાદ આપી શકું. અને એ ભગવાન કહે છે તું જે કંઈ કાર્ય કર તારા જીવનના, એ દરેક કાર્યની અંદર સવારથી લઈને રાત સુધી સુધા સુધી બધાને આશીર્વાદ આપતો રહેજે. કારણ કે તું ભગવાનનો જાગીરદાર છે. What is the center point of your life? Each આ ઝંડાનો સેન્ટર પોઈન્ટ છે. વ્હાઈટ કલર શું સૂચવે છે? કે હું અંદરથી ઈમાનદાર બનું. કોના પ્રત્યે? દુનિયાને દેખાડું કે હું કેટલો ઈમાનદાર છું. Be honest with your own self first. A person who is honest with their own self can never make a mistake. And if at all one makes a mistake, there is a system to delete that mistake forever. But it will be successful only if it is honest. એટલે ભગવાન કહે છે સૌથી પહેલા તારી જાતને ઈમાનદાર બનાવ. ઈમાનદાર રહેવાની નો નિર્ણય લેજો કે I will be honest with myself. દુનિયાને તું કેટલો ઓનેસ્ટ છે એ દેખાડવાની હરકતમાંથી નીકળી અને be honest within your own self, to your own self. તારા અંદરના ભગવાનને જમીરને પૂછ કે તું ઈમાનદાર છે કે નહીં. Are you honest with your own self? જે માણસ પોતાને ઓનેસ્ટ છે એ કોઈ દિવસ બીજાનું બગાડી શકતો નથી. એની અંદર મનમાં વિચાર આવી પણ શકતો નથી કે કોઈનું હું આ રીતે બગાડીશ. ઈ જ આ ઝંડાનો સેન્ટર પોઈન્ટ છે. વ્હાઈટ કલર શું સૂચવે છે? કે હું અંદરથી ઈમાનદાર બનું. કોના પ્રત્યે? દુનિયાને દેખાડું કે હું કેટલો ઈમાનદાર છું. Be honest with your own self first. A person who is honest with their own self can never make a mistake. And if at all one makes a mistake, there is a system to delete that mistake forever. But it will be successful only if it is honest. એટલે ભગવાન કહે છે સૌથી પહેલા તારી જાતને ઈમાનદાર બનાવ. ઈમાનદાર રહેવાની નો નિર્ણય લેજો કે I will be honest with myself. દુનિયાને તું કેટલો ઓનેસ્ટ છે એ દેખાડવાની હરકતમાંથી નીકળી અને be honest within your own self, to your own self. તારા અંદરના ભગવાનને જમીરને પૂછ કે તું ઈમાનદાર છે કે નહીં. Are you honest with your own self? જે માણસ પોતાને ઓનેસ્ટ છે એ કોઈ દિવસ બીજાનું બગાડી શકતો નથી. એની અંદર મનમાં વિચાર આવી પણ શકતો નથી કે કોઈનું હું આ રીતે બગાડીશ. રક્ષાબંધન લૌકિક વ્યવહાર જે આપણે કરીએ છીએ કે બેન ભાઈને ત્યાં જાય અને ભાઈના હાથમાં રાખડી બાંધે, ત્યારે ચિંતન શું કરવાનું છે?
આ રક્ષાબંધન એક આધ્યાત્મિક પર્વ છે. અધ્યાત્મની દ્રષ્ટિએ જો જોવામાં આવે, ભાઈની હેસિયત શું તમને બચાવવાની? બચાવી શકે? બરાબર છે. તો એ લૌકિક વ્યવહાર શા માટે છે? એનું વિજ્ઞાન શું છે? આ પર્વ શા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે? અને શ્રાવણ મહિનામાં જ શા માટે? શ્રાવણ સુદ પૂનમ. હા, કે સૌથી પહેલા તો વર્ષાવાસ, અષાઢ સુદ બીજથી વર્ષાવાસ શરૂ થાય અને કાર્તકી પૂનમ સુધી ચાલે. तो આપણે આપણી ભાષામાં, हमारी भाषा में हम उसे चौमासा कहते हैं. वास्तविक वो वर्षावास है. वर्षावास में यानी क्या? वर्षावास यानी वर्षा ऋतु की मौसम, और उस मौसम के अंदर हमें अपने आप में स्थिर होना है, क्योंकि वर्षा ऋतु एक ऐसी ऋतु है जो बैलेंस ऋतु है. न ठंडी है न गर्मी है, और इस ऋतु में सारी सृष्टि का यौवन खिलता है. सारी सृष्टि में हर जीव आनंदित होता है कि नहीं? चारों ओर हरियाली छा जाती है, चारों ओर ठंडक हो जाती है. गर्मी के बाद जब पहली बरसात होती है, ठंडक होती है. तृषा समाप्त होती है, क्षुधा समाप्त होती है. अन्न और पानी मिलता है इस ऋतु में. ये बाहर की बात हुई. अन्न जल मिलता है, और अंदर की बात ये हुई, बाहर का वातावरण ठंडा होता है और अंदर का वातावरण भी ठंडा होता है. अन्न जल और शरीर को ठंडक मिले तो ऑटोमेटिक 50% प्रॉब्लम सॉल्व हुआ. गर्मी में हम उत्तेजित होते हैं, क्रोधित होते हैं. आप देखना, जितनी गर्मी होगी ना गर्मी की ऋतु में, तो दिमाग भी गर्म हो जाता है और छोटी छोटी बात में भड़कना शुरू होता है. उससे विपरीत इस ऋतु में होता है, वर्षा ऋतु में. वो तो वर्षा ऋतु का महत्व क्यों? तो शरद ऋतु, शरद ऋतु में क्या होता है? एक्सट्रीम ठंडक होती है. वो भी डैमेजिंग है, वो भी एक हद तक उसको हम सह सकते हैं, उसके बाद आगे नहीं. सो वर्षा ऋतु इज अ सम ऋतु. ठंडक भी है, गर्मी भी है, दोनों का बैलेंस भी है. और तृषा और क्षुधा यानी कि खाना, जल, अन्न और जल दोनों की पर्याप्ति होती है. और नैसर्गिक रूप से सब आनंदित होते, प्रफुल्लित होते हैं. इसीलिए साधना काल, सर्वश्रेष्ठ साधना काल कौन सा है? ये 4 महीना. पूरे साल के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो कुछ भी अचीवमेंट करना है, चाहे व्यवहारिक हो, गृहस्थी का हो या आंतरिक हो, अचीवमेंट बेस्ट पॉसिबल इज इन दिस 4 मंथ्स. और इस ऋतु में ये रक्षाबंधन आती है. रक्षाबंधन यानी क्या? यानी कि हम विधि क्रिया किसके साथ भी करें, लेकिन याद किसको रखना है? सपोज आप आपके भाई के हाथ में अभी बांधोगे, कहीं हजी तो बांधવાનું બાકી છે ને. હા, તો હવે બાંધો ને ત્યારે ભાઈનું કવર ઉપર ધ્યાન નહીં રાખતા, ભાઈના મોઢા ઉપર ધ્યાન નહીં રાખતા, ભાઈના તો તમે શું મીઠાઈ ખવડાવી, 100 રૂપિયાનો ધાગો પહેરાવીને આખા જિંદગીનું કાસળ કાઢી નાખે. So now you are supposed to be सत्संगी एंड साधक. तो उसकी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? उसकी दृष्टि इस पे होनी चाहिए, इस सातों की कृपा.
आप बांध रहे हैं धागा अपने भाई के हाथ में, आपको बराबर मालूम है ये क्या मेरा क्या रक्षा करेगा। जब हमारे माँ बाप हमारी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो भाई क्या करेगा। लेकिन ये पर्व हमें क्या सुलझाता है कि माध्यम कुछ भी हो, माध्यम कुछ भी हो सामने, खाली फ्रेंडशिप डे में हम क्या करते हैं, हाँ क्या कौन सा बैंड, फ्रेंडशिप बैंड। बैंड यानी अंग्रेजी नाम हो गया, हो गई तो राखड़ी ना, हमारी गुजराती हिंदी भाषा में तो राखड़ी हो गई ना। हाँ हाँ हाँ, स्वरूप अलग છે, બાકી વસ્તુ તો ઈ જ થઈ ને। हाँ, तो ये हम बाहर लौकिक व्यवहार जो करते हैं, तो उस व्यवहार के अंदर ध्यान में क्या रखना है। आप बांध रहे हैं ना, तब कुरूपा किसकी लेनी है, रक्षा किसके पास मांगनी है, वो भाई के पास नहीं मांगनी है, किसके पास मांगनी है, ईश्वर, जीवित तीर्थंकर परमात्मा और केवली भगवंत, सिद्ध परमात्मा, साधु परमात्मा, माता पिता, गुरुजन, सदगुरु और सर्वजीव जीव। तो अभी आप बांधो ना, तो इनको याद करना आंख बंद करके। और ये जो है प्रेरणा स्रोत है, ये शक्ति देंगे। आप सामने जो भी जिसका भी हाथ बांध रहे हो ना आप, वो साथ इनको शक्ति देगा और हमको भी शक्ति देगा। पहली शक्ति कौन सी, ज्ञान शक्ति। देखो आप भाई को फोन करो कुछ काम के लिए, भाई हमणा मने टाइम नहीं, तू काले फोन करजे। पेला तो एम थे हजी सांभळ्યું नहीं ने मने कालनु कही दीधुं, आवा दे हवे एनु काम आवा दे, जोशु होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। सो इस रक्षाबंधन के अंदर, ये बंधन नहीं है, ये नाम शब्द प्रयोग बंधन है, लेकिन वास्तविक वो समर्पण है। क्या है, रक्षा समर्पण। किसका समर्पण, ये सातों का समर्पण। हम अपने आप को ये सातों को समर्पित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे स्वतंत्रता चाहिए। तो रक्षाबंधन और स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बंधन कभी मुक्ति नहीं दे सकता है, लेकिन यहां पर जो शब्द प्रयोग है वो रक्षा वास्तविक बंधन नहीं है, वास्तविक समर्पण है। समर्पण से ही मुक्ति संभव है और परम मुक्ति संभव है। तो 15 अगस्त और ये रक्षाबंधन दोनों इंटरकनेक्टेड है। और एक स्टेप और आगे है इंटरकनेक्शन, कि जो ये करता है उसी की जन्माष्टमी होती है, उसी को अष्टमंगल मिलता है, वो ही अष्ट प्रवचन माता में लयलीन बनता है। और उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है जिसका नाम है पजोसन। सो एवरीथिंग इज लिंक, क्रॉस लिंक्ड। शुरुआत कहां से होती है, रक्षाबंधन से। श्रावण पूर्णिमा, पूर्णिमा का दिन क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि हमें पूर्ण बनना है। नमो जिणानम। प्रभु की असीम कृपा से हर साल की तरह परम आनंद परिवार परम पूज्य सद्गुरु पंकज भाई के सानिध्य में महावीर जन्म कल्याणक यानी कि स्वयं के अंदर महावीर का प्रकटीकरण करने का अवसर अनोखे अंदाज से मनाने जा रहा है। परम सुख जीवन विकास केंद्र सर्वजीव कल्याण हेतु साल भर विविध सेवाओं का आयोजन करता है। जहां इस जगत में सभी लोग किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां यह परिवार ज्ञान का दीपक लेकर
जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी समस्याओं का समाधान 3 स्टेप में आयोजन करके प्रसार कर रहा है, जिसमें पहला स्टेप है दिव्य जीवन की साइंटिफिक शिविर, जैसे कि साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग थ्रू नमस्कार महामंत्र योग, डिवाइन लाइफ मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, स्पेशल शिविर फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स का आयोजन किया जाता है। दूसरा स्टेप है भारत भर में होने वाले उत्सव एवं महोत्सव, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, 9 दिवसीय सम्यक पर्युषण अनुभवधारा, महाशिवरात्रि महोत्सव, सम्यक अग्नि महोत्सव यानी कि होली, महावीर जन्म कल्याणक, सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक, जन्माष्टमी तथा गणतंत्र दिवस को साइंटिफिक तरीके से मनाया जाता है। तीसरा स्टेप है साइंटिफिक प्रैक्टिकल आत्मविकास आराधना साधना, जिसमें नॉन स्टॉप 48 घंटे भगवान महावीर की अंतिम वाणी की देशना, जैन मार्ग ट्रैकिंग, साल में 2 बार 18 दिवसीय सामूहिक नवरात्रि शक्ति आराधना एवं ज्ञान साधना, 3, 9 और 18 दिवसीय उपध्यान यानी कि डिवाइन लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। विश्व भर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस सेवाओं का लाभ प्रत्यक्ष एवं विविध माध्यम जैसे कि आर्यन चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़कर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। उतना ही नहीं, वर्ष पर समाज उपयोगी वेबिनार्स का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल वेलनेस, एक्टिविटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स, चैलेंजेस फेस्ड बाय एवरी टीनेजर्स, हेल्थ संबंधित वेबिनार्स, गर्भ संस्कार, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन यूथ, मैट्रिमोनियल लग्न संस्कार का साइंटिफिक अप्रोच, एजुकेशन टू अपग्रेड वुमन टू फेस मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे अद्भुत वर्तमान समस्याओं का समाधान देने वाले वेबिनार्स का आयोजन किया गया और समाज के सभी लोगों ने इसको सहर्ष आवकार दिया। परम सुख जीवन विकास केंद्र साल भर 7 प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिसमें अनाथ आश्रम सेवा, अनाज वितरण सेवा, मेडिकल सेवा, एजुकेशन सेवा, पशु पक्षी जीव दया सेवा, साधु साध्वी वैयावच सेवा, ज्ञान प्रचार प्रसार सेवा, 24/7 मिस कॉल सेवा यानी कि विश्व के किसी भी कोने से कोई भी मिस कॉल देकर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस साल से नई 8 सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका मकसद है व्यवहारिक जीवन में जो विविध प्रकार की समस्याएं आती हैं उसकी सही जानकारी, अनुभव पर आधारित सॉल्यूशन सभी को एक ही जगह पर मिले। इस सेवा का नाम रखा गया है पैप्स यानी कि परम आनंद परिवार समाज सेवा, जिसमें पैप्स पेरेंट्स, पैप्स सीनियर सिटीज़न, पैप्स यूथ, फाइनेंस, हेल्थ, वुमेन्स, मैट्रिमोनियल्स, स्पिरिचुअल पैप्स, इन सभी व्हाट्सएप सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करवा के इस सेवाओं का लाभ लें, ऐसी आप सभी से प्रेरणा है। इस प्रकार परम सुख जीवन विकास केंद्र निस्वार्थ भाव से सबका मंगल और कल्याण हो, इस मैत्री भाव से अनेक प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्पर है। इन सभी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका तन मन समय देकर तथा इस महासेवा यज्ञ में आपके धन का सहयोग करके आपका एवं आपके परिवार का मंगल करें, ऐसी मंगल प्रेरणा करते हैं। नमो जिणाणम। आई थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमो जिणाणम।